We all have some kind of fear in our lives. हम सबों के जीवन में किसी प्रकार का डर है, Some kind of fear. किसी प्रकार का डर. It can be big or small, शायद वो डर बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, but we have fears. लेकिन हम सबों के जीवन में डर है. Some of us have fear of height. कई लोगों को ऊंचाई का डर है, Some of us fear deep waters. कईयों को गहरे पानी का डर है, Some of us are very afraid of getting sick. कई लोगों को डर है कि वो बीमार हो जाएं. I remember when I was little, जब मैं याद करता हूँ जब मैं छोटा सा था, I was so afraid of going to hell. मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता था कि मैं नरक में चला जाऊंगा. Ever since I heard the sermon on heaven and hell, जब से मैंने ये संदेश सुना था स्वर्ग और नरक के बारे में, I was so afraid. मैं बहुत ही डरता था. These kind of sermons used to terrify me a lot. ऐसे वाले संदेश मुझे बहुत डरा देते थे. And that really and that really was a kind of fear that was grabbing me every time. और I used to hear. ये ऐसा डर था जो मुझे हमेशा जकड़ लेता था. So we have some kind of fear in our lives. इसलिए हमारे जीवन में किसी प्रकार का डर है. But today I want to ask you, do you fear God? लेकिन मैं आज सुबह के समय आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर से भय खाते हैं? Do we really fear God? क्या आप सच में परमेश्वर से डरते हैं? Now you might misunderstand the word fear here. मैं सोचता हूँ यहाँ आप इस शब्द को गलत तरह से सोचेंगे शायद. I'm talking about the reverential fear here. मैं एक आदरपूर्ण एक भय के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ आज The सुबह. fear that comes out of love for God. एक ऐसा डर जो हमारे अंदर परमेश्वर से प्रेम के प्रति आता है. Why do we have to fear God? क्यों हमको परमेश्वर का से भय खाना है? Why do we fear God? क्यों हम परमेश्वर से डरते हैं? Bible says that the Lord, repeatedly he says that fear me. बाइबल में बार बार परमेश्वर ने बोला है तुम मुझसे डरो. It says fear the Lord. परमेश्वर से भय मानो. And why God was continually reminding his people, because he wanted them to be away from the evil. और परमेश्वर लोगों को बार बार ये बताता कि तुम मुझसे डरो क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो दूर रहे. And so हर time and बुराई से. again, we read that Bible says fear the Lord. इसलिए बार बार बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर से भय खाओ. Let's read it together. We can read some references where it says fear the Lord. आइए मिलकर पढ़ते हैं बाइबल में कहाँ पर लिखा है ऐसा. In Proverbs chapter 8 verse 13 we see it says, नीति वचन 8 के 13 में ऐसे लिखा है, it says the fear of the Lord is hatred of evil. यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate. घमंड, अहंकार और बुरी चाल और उल्टे फेर की बातों से मैं बैर रखता हूँ. So we have to fear the Lord because God wants us to be away from evil. क्योंकि हमको परमेश्वर का भय इसलिए मानना है क्योंकि हमको बुराई से अलग रहना है. Let's read Proverbs chapter 14 verse 27. आइए हमारे साथ पढ़े नीति वचन उसका 14 अध्याय का 27 पद. It says the fear of the Lord is a fountain of life that one may turn away from the snares of death. यहाँ पर ऐसा लिखा है यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं. In chapter 15 verse 16 in Proverbs it says, नीति वचन के 15 के 16 में ऐसा लिखा है, it says better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it. यहाँ पे ऐसा लिखा है घबराहट के साथ बहुत रहते हुए धन से यहोवा का भय मानकर थोड़ा सा धन उत्तम है. In chapter 19 verse 23 यहाँ पर हम पाते हैं नीति वचन के 19 के 23 में, it says the fear of the Lord leads to life यहाँ and पे whoever has it rests satisfied, he will not be visited by harm. यहाँ पर लिखा है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है. In Job also chapter 28 verse 28 we see and it says, and he said to man, behold the fear of the Lord that is wisdom, and to turn away from evil is understanding. यहाँ पर हम पाते हैं अय्यूब के 28 में ऐसा लिखा है, तब उसने मनुष्य से कहा देख परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना
यही समझ है। So we repeatedly says God, Bible talks about the fear of the Lord. इसलिए बाइबल में बार-बार लिखा गया है परमेश्वर का भय मानना। Please don't misunderstand this word. It doesn't mean that we have to be scared of God. इस शब्द को गलत तरह से ना समझे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको परमेश्वर से बुरी तरह से डरना है उससे। We don't have to be scared of him. हमें उससे डर के भयभीत सा नहीं हो जाना But है। Bible is talking about the reverential fear. We have to revere him. लेकिन परमेश्वर के वचन में जो भय के बारे में लिखा है वो है आदरपूर्ण भय। Many of us fear God because we want to get married. कई बार हम लोग परमेश्वर से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमको शादी करनी है, We want to get a job. हमको एक अच्छी नौकरी चाहिए है, Or we want some kind of promotion. हमको अपने जीवन में कुछ तरक्की चाहिए है। Or we want to hear the will of God for me. ओ मुझे अपने परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए जाननी है, So we fear God. इसलिए हम परमेश्वर से डरते We हैं। are so active in the church. हम कलीसिया में बहुत ही ज्यादा बहुत ही उत्तेजित से रहते हैं। We give tithes. हम अपना दशवांश देते हैं। It's all out of fear for God. ये सब चीजें परमेश्वर से भय के कारण है, Because we want something from God. क्योंकि हमको परमेश्वर से कुछ चाहिए है Or we want protection from COVID maybe. और हमको इस कोविड से हमको अपने जीवन की सुरक्षा Also चाहिए that's है, why we fear God. इसलिए हम परमेश्वर से भय खाते हैं। Well, don't misunderstand me again. We can fear God. ये मुझे ना बुरा अलग ना समझे, मेरा कहने का मतलब हमें डरना है परमेश्वर से, But that should be out of love for him. लेकिन ये हमारा प्रेम का प्रकटीकरण होना चाहिए Now उस डर in को। Job, in the book of Job, we read about a man called Job. हम अय्यूब की पुस्तक में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है अय्यूब। And we see that he was, if we read chapter 1, verse 1 onwards, it says there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. यहाँ पर अय्यूब के बारे में ऐसे लिखा है, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। And Bible talks about his wealth. He was very wealthy. और बाइबल बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा एक धनवान व्यक्ति था। He had 7 sons and 3 daughters. उसके 7 बेटे थे और 3 पुत्रियां थी। Verse 3 says he possessed 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of. So he had a lot of wealth, we see. और यहाँ पर हम पाते हैं कि उसके पास बहुत सी धन संपत्ति थी, Lot of wealth. बहुत सी ज्यादा संपत्ति And थी, yet he feared the Lord. और फिर भी वो परमेश्वर का भय मानता था। This is quite surprising for me. ये बहुत ही ज्यादा एक मुझे सोचने वाली मेरे लिए एक बात Because है, I feel like if we have lot of wealth, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ अगर हमारे पास बहुत ज्यादा संपत्ति होती then we है have everything. We don't have to fear God. तो फिर हमारे पास सब कुछ होता है, हमको परमेश्वर का भय मानने की जरूरत नहीं होती है। Sometimes wealthy people fear God because they are scared that they might lose their possession. कई बार जो धनवान लोग होते हैं वो इसलिए डरते हैं ऐसा ना हो कि वो अपनी संपत्ति खो दें। But here we say, here God himself is witnessing and testifying about Job in verse 9. और यहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने आप ही अय्यूब के जीवन के लिए एक गवाही दे रहा है, एक साक्षी दे रहा In है। verse 8 it says, and the Lord said to Satan, because Satan comes, और यहाँ पर परमेश्वर यहोवा जो है शैतान से कहता है, it says, God says, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil. क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? God is himself testifying about Job that he fears the Lord and he walks blameless, he walks upright. परमेश्वर अपने आप से ही खुद से अय्यूब के जीवन की एक गवाही यहाँ पर दे रहा है। Now, verse 9 is something which is kind of, which left me like awestruck. I was totally like, everything stopped for me for a अब while. जब हम यहाँ के पहले अय्यूब के पहले अध्याय के जब 9वें पद में आते हैं तो एक ऐसी चीज लिखी है जिसने मुझको एकदम से चौंका दिया। Now, here we see a background of who Job is and what kind of person he is. He fears the Lord and he walks blameless. Everything is fine. But when we come to verse 9, it's kind of everything changes here because because Satan is saying something there. यहाँ पर हम पाते हैं कि पहले अध्यायों में हम पाते हैं अय्यूब के जीवन के बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम से 9वें पद में बात पलट जाती है। Now, when after all that God has testified about Job, Satan has something to say. अब जबकि परमेश्वर यहोवा ने अय्यूब के जीवन के बारे में सब कुछ एक साक्षी दे दी है,
अब 9वें पद में शैतान कुछ कहता है। Then Satan answered the Lord and said, तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया और कहा, Does Job fear God for no reason? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? Does Job fear God for nothing? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय किसी लाभ के लिए मानता है? Quite surprising, right? कुछ सोचने वाली एक रुचिकर सी बात है ना। I remembered some couple of years ago when I first read this passage, I was so shocked to read what Satan had to ask मैं God. जब कुछ सालों पहले इस पद को पढ़ रहा था, इस वचन को पढ़ रहा था, तो एकदम से मैं चौंक गया। This just attacked my spiritual faith in the Lord. इसने मेरे जो आत्मिक जीवन को है उसको एकदम से आक्रमण किया। It just challenged me so much. इसने मुझे चुनौती दी। It's like is as if Satan is asking me, I mean, do you fear God for nothing? ऐसा मुझे लगा जैसे शैतान मुझसे पूछ रहा है कि आमीन, क्या तुम परमेश्वर का भय किसी लाभ के लिए मानते हो? I mean, do you worship God for nothing? क्या तू परमेश्वर का भय किसी लाभ के लिए करता है? I mean, do you love God for nothing? क्या तू परमेश्वर से प्यार किसी भय के लिए करता है? As if Satan is asking me. ऐसा लगा जैसे शैतान ने मुझसे पूछा। No. I think you fear God for something. I think. नहीं, मुझे लगता है तू परमेश्वर का भय किसी लाभ के लिए नहीं I मानता think है। you want something from God. That's why you fear God. शैतान ऐसे सोचता था, अच्छा तू कोई लाभ चाहता है इसलिए परमेश्वर से भय It's खाता a है। very discouraging statement from Satan. तो यहाँ पे शैतान की ओर से बहुत ही एक निराश करने वाला एक कथन है। But somehow I like this question लेकिन मुझे ये प्रश्न बहुत because अच्छा it लगा, really challenged me at that point. क्योंकि इसने मुझे बहुत चुनौती दी उस समय में। Now here we see it's a starting of a debate between God and Satan. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक वार्तालाप हो रहा है शैतान के बीच में और परमेश्वर के बीच में। And the interesting part is Job has no idea what's going on. और यहाँ पर रुचिकर बात यह है कि अय्यूब को कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। Job does not know anything that God and Satan are actually raging war against each other. अय्यूब को ये नहीं पता है कि परमेश्वर और शैतान के बीच में एक युद्ध सा चल रहा है। And later on we see that Job lost everything. और हम फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि अय्यूब ने सब कुछ खो दिया। Job lost everything. अय्यूब ने सब कुछ खो दिया। Job lost his children. अय्यूब ने अपने बच्चे खो दिए। Job was badly afflicted with disease. अय्यूब को बहुत सी ऐसी पीड़ा हुई जो शारीरिक रूप से पीड़ा उठाई, And yet he did not question God. लेकिन उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर को प्रश्न नहीं किया। He said, the Lord gives and he takes away. Blessed be the name of the Lord. उसने बोला परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। Can we not expect, should we always expect good from the Lord and क्या not bad? क्या हम परमेश्वर से हमेशा अच्छा ही चाहें, बुरा ना चाहें? That's what his reaction was. यही उसका एक प्रत्युत्तर था। Job did not know that a war was raging against him. अय्यूब को नहीं पता था कि एक युद्ध उसके लिए छिड़ गया It है। was a huge test for Job. अय्यूब के लिए एक ये बहुत ही बड़ी एक परीक्षा थी। Now there are three words in Bible that are interchangeably used. The first word is trial. बाइबल में 3 प्रकार के शब्द प्रयोग हुए हैं। सबसे पहला है परखा जाना, The second word is test. दूसरा है परीक्षा में पड़ना, And the third word is temptation. और तीसरा शब्द है प्रलोभन। Temptation. प्रलोभन। But here we see that it's a test. लेकिन हम पाते हैं यहाँ अय्यूब की परीक्षा, वो परखा जा रहा है। Now test is something that God allows in our life. अच्छा, परीक्षा एक ऐसी चीज होती है जो परमेश्वर अनुमति देता है हमारे The जीवनों same के thing we अंदर। read in Genesis chapter 22 when God tests Abraham. हम पाते हैं उत्पत्ति के 22 में भी हम पाते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। Similarly here God is allowing this test on Job through Satan. और यहाँ पर परमेश्वर एक बार फिर से अय्यूब के जीवन में अनुमति दे रहा है शैतान के द्वारा कि उसकी परीक्षा ली जाए। Friends, many times this test comes in our lives also. कई बार हमारे जीवनों में भी परीक्षाएं आती हैं We are मित्रों। afflicted. कई बार हमको शारीरिक उत्पीड़न होता है। We go through a time of valley, कई बार हम तराई के समय से होकर a गुजरते time हैं। of crying and wailing. कई बार हमको रोना होता है और पीड़ा होती है। We go through financial challenges. हम कई बार आर्थिक चुनौतियों से होकर गुजरते हैं। Can I ask you a question today? क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ आज सुबह के What समय? if a war is raging right now for you? अगर ऐसा हो कि आपके लिए एक युद्ध छिड़ गया हो, Just like Job. जैसे अय्यूब के लिए था। What if a war is being raged right now? अगर ऐसा हो कि इस समय आपके लिए कोई युद्ध छिड़ गया हो, What if Satan is saying,
अगर ऐसा हो कि कोई शैतान आपसे ऐसा कह रहा Oh, हो, I think this child of yours worship you for a reason. मुझे लगता है ये तेरा बच्चा जो है तेरी आराधना किसी कारण के लिए करता Oh, है। I think Brother Adibo fears the Lord for a reason. भाई अदीबू जो है परमेश्वर से किसी लाभ के लिए उससे डरते हैं। Oh, Brother Amin comes to the church because of something. भाई आमीन कलीसिया में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें कोई लाभ चाहिए है। My friends, a war is raging every day in our lives. मेरे मित्रों, हर दिन हमारे जीवन में एक युद्ध छिड़ा हुआ है। What will be your response? आपका प्रत्युत्तर क्या होगा? Who will win? कौन जीतेगा? Will Satan win? या शैतान जीतेगा Will God win? या परमेश्वर यहोवा जीतेगा? Your response to the situation will define. आपका प्रत्युत्तर उस परिस्थिति में बताएगा वो क्या चीज है। That is why I asked you in the beginning. इसलिए आपसे मैंने शुरुआत में पूछा, Why do we worship God? क्यों हम परमेश्वर की आराधना Why करते do we हैं? fear God? क्यों हम परमेश्वर से डरते हैं? Why do we have to come to church every क्यों Sunday? क्यों हर रविवार हमें कलीसिया में आना है? Why we have to participate and help in all the church activities? क्यों हमको कलीसिया के हर कार्य में हमको मदद करानी Why है? we have to serve the Lord? क्यों हमको परमेश्वर की सेवा करनी है? Do we do it for a reason? क्या हम किसी लाभ के लिए करते हैं? Satan was asking God, यही शैतान पूछ रहा था परमेश्वर से। I think your son or your servant Job fears you for something. शायद तेरा दास अय्यूब मेरा भय किसी लाभ के लिए खाता And है। you know what happened with Job? और पता है अय्यूब के साथ क्या हुआ? He lost his children, उसने अपने बच्चे खो he दिए, lost all his possessions, उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी, and yet he did not denounce God. और फिर भी उसने परमेश्वर को त्यागा नहीं। Why? क्यों? Because he feared the Lord क्योंकि उसने परमेश्वर का भय for खाया, absolutely nothing. क्योंकि उसे कोई लाभ नहीं चाहिए था। My friends, if you fear God for something in return, मेरे मित्रों, अगर आपको परमेश्वर का भय इसलिए खाना है क्योंकि आपको वापस में कुछ चाहिए है, the blessing won't come. आशीषें नहीं आएंगी। God's will for your life will not be fulfilled. परमेश्वर की इच्छाएं आपके जीवन में पूरी नहीं होंगी, Because then you are doing it for some reason. क्योंकि फिर आप उसको किसी कारण किसी लाभ के लिए कर रहे हैं। Job feared the Lord for nothing. अय्यूब ने परमेश्वर का भय माना किसी लाभ के लिए नहीं। You know the interesting part, the most beautiful part I like in this story, एक बड़ी रुचिकर सी बात है इस कहानी में जो हम पढ़ते हैं that Job did not have to clarify anything. कि अय्यूब को अपने आप से कुछ भी सफाई नहीं देनी पड़ी। Why? Because God was on his side. क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी ओर था। God was already witnessing who Job was. क्योंकि परमेश्वर अपने आप से ही अय्यूब की साक्षी दे रहा God था। was already standing on Job's behalf. क्योंकि परमेश्वर अय्यूब की ओर से खड़ा था। Job did not have to say any word. अय्यूब को एक शब्द भी बोलना नहीं पड़ा। Job was quietly doing what he is already called for. अय्यूब चुपचाप से वो कर रहा था जिसके लिए वो Hallelujah. बुलाया गया है। If you walk हालेलुया। blamelessly before the अगर Lord, आप परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष होकर if अपना you जीवन fear the Lord for बिताते हैं, nothing, अगर आप परमेश्वर का भय किसी लाभ के लिए नहीं oh, खाते God हैं, will stand on your side. परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। You will not have to speak a word. आपको एक शब्द भी बोलना नहीं You पड़ेगा। know the battle was already won actually. आपको पता है युद्ध उसका पहले से ही जीता जा चुका था। The moment God testified about Job that he's blameless and he's upright, the battle was already won. जिस समय परमेश्वर यहोवा ने अय्यूब के जीवन के लिए साक्षी दी, उसी समय युद्ध जीता जा चुका था। Sometimes we feel that we are fighting the battle. कई बार हम सोचते हैं हम युद्ध लड़ रहे हैं। Oh, we feel, oh, we are so tired of fighting God. हम सोचते हैं कई बार हम अपना युद्ध लड़ते लड़ते इतने थक चुके हैं। Oh, we feel, oh, we need so much to fight this battle, so to go through this time of crisis in हमको our लगता life. है हमको इतना ज्यादा इस युद्ध से गुजरना है और अपने जीवन के इस कठिन समय से निकलना Oh, है। I'm the only one crying right now. सिर्फ मैं ही हूँ जो अकेला रो रहा But हूँ। friends, if God is on your side, लेकिन मित्रों, अगर परमेश्वर हमारी ओर है and if He's testifying that you walk blameless, और अगर परमेश्वर हमारे लिए ऐसी गवाही देता है कि हम निर्दोष होकर परमेश्वर के साथ चलते that you हैं, have already won the battle. इसका मतलब आपका युद्ध पहले से ही जीता You जा were चुका never है। alone. आप कभी भी अकेले नहीं हैं। God was already there before. परमेश्वर आपके साथ पहले से ही था। Hallelujah. हालेलुया। Oh, yes, this is the Amen. truth, my friends. यही सच्चाई है मेरे मित्रों। We don't fight battles on the basis of what the enemy says. हम अपना युद्ध उस बुनियाद पे नहीं लड़ते हैं कि शैतान क्या सोचता है। We fight our battles on the basis of what God knows about us. हम अपने युद्ध उस बुनियाद पे लड़ते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या So सोचता I है। want to ask you again, इसलिए आज सुबह दोबारा आपसे पूछना what चाहता does हूँ, God know about you? परमेश्वर आपके बारे में क्या जानता है? Who are you in God's eyes? आप परमेश्वर की दृष्टि में कौन हैं? What will God testify about you today? परमेश्वर आपके बारे में आज क्या साक्षी देगा? Can God say that you also walk blameless? क्या परमेश्वर ये भी बोल सकता है आपके बारे में कि आप परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हैं? Can God also tell
क्या परमेश्वर ऐसे बोल सकता है Oh, that you fear me for nothing, कि तू मुझसे मेरा भय करता है क्योंकि तुझे कोई लाभ नहीं चाहिए, for no reason. किसी लाभ के लिए नहीं। If this is the truth, अगर ये सच्चाई है, then God is already on our side. परमेश्वर हमारे साथ पहले से ही The है, battle is already won. पहले से ही युद्ध जीता जा चुका है। We only need God's affirmation. हमको सिर्फ परमेश्वर का दिया हुआ वो वचन चाहिए, वो अंगीकार चाहिए परमेश्वर We के मुंह से। only need His yes. सिर्फ हमें परमेश्वर का हाँ चाहिए है, We only need His thumbs up for us. सिर्फ हमें परमेश्वर का हाँ चाहिए है, That's all we need. बस सिर्फ हमें ये चाहिए है। Even though the battle was right behind Job, Job did not know and had any idea about what's going on. जबकि युद्ध अय्यूब के पीछे ही था, लेकिन अय्यूब को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। Job did not have to worry about anything. अय्यूब को किसी चीज की चिंता नहीं करनी He थी, was just walking his walk with the Lord. पर बस वो अपनी जो चाल थी वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। People will say a lot about you. कई बार लोग आपके बारे में बहुत सा कुछ Oh, this बोलेंगे, sister is like that. Oh, this brother is like that. ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसा है। Friends, we have to sometimes just quietly walk our walk with the Lord. बस कई बार मित्रों हमको अपनी चाल बस चलनी है परमेश्वर के Every day साथ। in our lives is a challenge. हर दिन हमारे जीवन में चुनौतियां हैं, Every day the war is raging between God and हर Satan. दिन शैतान और परमेश्वर के बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ है। Who will we make win every day in our lives? किसको हम अपने जीवन में जीतने Who देंगे, will we let win over our lives? किसको हम अपने जीवन के ऊपर जीतने देंगे। Right now, maybe you're going through a very terrible situation in our शायद life. इस समय आप अपने जीवन में एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे Very हैं, challenging, maybe. बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण Maybe a है। sickness. एक बीमारी है कोई, Maybe you don't have money. शायद आपके पास पैसा Maybe you नहीं don't है, have job. शायद आपके पास नौकरी नहीं Maybe है, you are praying for something very specific. शायद आप बहुत ही एक स्पष्ट रूप से किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। What is your response towards God? परमेश्वर के प्रति आपका क्या प्रत्युत्तर है? What will you say? क्या आप परमेश्वर को बोलेंगे? What will God testify about you? परमेश्वर आपके बारे में क्या साक्षी देगा? Can God fight your case? क्या परमेश्वर आपका केस आपका युद्ध लड़ सकता है? Friends, let's ask this question to ourselves today. आइए मित्रों, ये प्रश्न हम अपने आप से पूछे। We always say, let's trust God, let's trust God. हम हमेशा बोलते हैं आइए परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर पे भरोसा रखें। But can God trust us क्या today? परमेश्वर हम पे भरोसा रख सकता है? Can we really live the life that God expects us to live? क्या हम सच में वो जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है? Friends, we only need His affirmation. सिर्फ मित्रों हमें परमेश्वर का अंगीकार चाहिए हमारे We जीवनों के लिए। only need His yes for our सिर्फ lives. हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर का एक हाँ चाहिए। Yes. Can we all close our eyes right now? क्या हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं आज सुबह के Can we समय? say to the Lord, क्या हम परमेश्वर से बोल सकते हैं, Lord, I love you, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, but not for anything in return. सिर्फ किसी लाभ के लिए नहीं जो मुझे वापस में मिल But जाए। I love you because I love you. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Lord, I fear you because I really want to fear you. परमेश्वर मैं तेरा भय खाता हूँ क्योंकि मुझे तेरा भय खाना है, मुझे For nothing in return. किसी भी चीज के लिए नहीं जो मुझे वापस चाहिए है Lord, तुझसे। my fear for you is out of my love for you. मेरा जो भय है वो तेरे से प्रेम के प्रति है, Just like how Job feared you. जैसे अय्यूब ने तेरा भय खाया। Lord, help me to trust you more. परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह कर कि मैं तुझ पे और भी अपना भरोसा रखूं। Lord, help me to live a life that you want me to live. परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह कर वो मैं वैसा जीवन जीऊं जैसा तू चाहता है। Lord, help me to worship with all my heart. परमेश्वर मैं ऐसी आराधना करूं अपने पूरे हृदय से। Lord, help me to not live a fake life. अब मुझ पे अनुग्रह कर मैं एक झूठा जीवन ना जीऊं, Because Lord, I'm tired. क्योंकि मैं थक चुका हूं। Lord, I don't want to prove to anyone. परमेश्वर मुझे किसी को अपना किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं करना है। Lord, I only need your affirmation for my परमेश्वर life. बस मुझे तेरा अंगीकार चाहिए है मेरे जीवन के Lord, I ऊपर। only want to seek what you have to say for me, Lord. परमेश्वर मुझे सिर्फ वो कहना है जो तू मेरे बारे में कहना चाहता Lord, है। I will not believe in the lies of the enemy. परमेश्वर मैं दुष्ट के झूठ के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा। Lord, I want to believe in what you want to say. परमेश्वर मैं सिर्फ वो विश्वास करूंगा जो तू कहता है। Lord, every day is a battle in my life. परमेश्वर प्रतिदिन मेरे जीवन में एक युद्ध है। But Lord, I know, as your word says in Ephesians 6:12, जैसे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है इफिसियों की पत्री 6 के 12 it में, says, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. क्योंकि परमेश्वर हम जो है अपने जीवन में
इसलिए युद्ध लड़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर ये युद्ध हमारा नहीं है, ये युद्ध तेरा है और तू हमको जिताएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा है Lord इफिसियों के 6:12 में ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस Yes. के द्वारा नहीं है, परंतु प्रधानताओं Lord. से, अधिकारों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Let's all surrender our lives this morning. आइए friends. अपने जीवन को एक बार फिर से समर्पित करें। Let's all say to the Lord, आइए एक बार फिर से परमेश्वर से कहें, Lord, help me to love you परमेश्वर मेरी मदद करे कि मैं आपसे प्रेम कर with सकूं, all my heart, पूरे mind, मेरे हृदय से, soul, and strength. पूरे मेरी शक्ति से, मेरी बुद्धि से। Will we all respond to the word today? क्या हम आज परमेश्वर के वचन के प्रति उत्तर देंगे? Hallelujah.